দেশ জুড়ে প্লেনে বোমাতঙ্ক। প্রায় প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন এয়ারপোর্টে প্লেনে বোমা রাখা রয়েছে। এই ভুয়ো বোমাতঙ্ক রীতিমতন বিমান যাত্রীদের কাছে যেন ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিমান ছাড়তে দেরি হওয়ায় প্রচুর ক্ষতি হয় প্লেন সংস্থাগুলির। এদিকে এইভাবে বারবার ভুয়ো বোমাতঙ্ক ছড়ানোয় এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন নিরাপত্তা এজেন্সির কাছেও বিষয়টা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে অবশেষে কিছুটা হলেও সাফল্যের মুখ দেখল দেশের পুলিশ। জানা গিয়েছে এই প্লেনে বোমাতঙ্কের পিছনে থাকা একজনকে গ্রেফতার করেছে নাগপুর পুলিশ। মহারাষ্ট্রের নাগপুর থেকে বছর 35-এর এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম জগদীশ উইকি। কিন্তু কে জগদীশ? জানা গিয়েছে এই জগদীশ পেশায় একজন লেখক। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে একটি বই লিখছেন তিনি। নাগপুর পুলিশ সূত্রে খবর, জগদীশ শুধু দেশে 100টি বিমানে ভুয়ো বোমাতঙ্ক ছড়াননি, তিনি প্রধানমন্ত্রীর অফিস এবং অন্যান্য সরকারি পদাধিকারীদের অফিসেও ইমেল ও ফোন মারফত হুমকি দিয়েছেন। এইসব অভিযোগই তাকে যেন বলা যেতে পারে পুলিশের সন্দেহের তালিকায় রাখে। তারপর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। গন্ডিয়ার বাসিন্দা জগদীশ নাগপুরে আটক হন। দিল্লি থেকে নাগপুরে নামার পর তাকে আটক করে পুলিশ। জানা গিয়েছে এই প্রথম নয়, এর আগেও 2021 সালেও শ্রীঘরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে জগদীশের। সেবারেও এই ধরনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল জগদীশকে। এই বিষয়ে নাগপুর পুলিশের ডিসিপি লোহিত মাতানি জানিয়েছেন, ধৃত জগদীশের সন্ত্রাসবাদ নিয়ে একটি বই রয়েছে। ইতিমধ্যে জগদীশের মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপের মাধ্যমে বিভিন্ন হুমকি মেল এবং ফোন করত জগদীশ, এমনটাই সন্দেহ তদন্তকারীদের। তবে পুলিশের দাবি, আদতে আসলে সন্ত্রাসবাদীদের মতন করে হামলা চালানোর নাকি কোনো মোটিভ জগদীশের ছিল না। সে গোটা বিষয়টা নিয়ে নেহাতি পাবলিসিটি স্টান্টের মতন ব্যবহার করত। জানা গিয়েছে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে শুরু করে উইকি অসংখ্য ইমেল পাঠিয়ে দাবি করেছে যে বিভিন্ন স্থানে বোমা রাখা রয়েছে। বিস্ফোরণের আগাম সতর্কতা দিয়েই থাকে তার ইমেলের বার্তা। শুধু 25 অক্টোবর থেকে 30 অক্টোবরের মধ্যে জগদীশ সারা ভারতে 30টি স্থানে বিস্ফোরণের হুমকি দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তার ইমেলগুলিতে প্রধান রাজনৈতিক নেতা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের হুমকি অন্তর্ভুক্ত ছিল। তালিকায় ছিলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস। নাগপুরের পুলিশ উইকিকে তার আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে ট্র্যাক করেছে। नागपुर डीसीपी की बोलছেন শোনাবো আপনাদের। नागपुर पुलिस ने एक जो शख्स है जगदीश उइके, उसको अरेस्ट किया है। सरेंडर उसने नहीं किया है और उसके अंतर्गत उस पर एक गुना दाखिल किया है 353(1)(ब), 353(1)(c) और 353(2). इसमें उसने जो गुना किया है, उसने कुछ मैसेजेस भेजे हैं अलग अलग समय पर एयरलाइंस को, क्या कहते हैं, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को और अलग अलग अधिकारियों को, जिसमें उसने बताया है कि यहाँ पर अटैक होने वाला है और क्या कहते हैं, कहीं बम लगाए गए हैं, मार्केट प्लेस में बम लगाए गए हैं, रेलवे स्टेशन में बम लगाए गए हैं, एयरपोर्ट में बम लगाए गए हैं। इस तरीके से उसने अफवाह फैलाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से पूरी यंत्रणा उसमें लग जाती है। और ऐसी जानकारी भी है कि उसने ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी बहुत सारे ईमेल्स उसने किए हैं। इसलिए हमने उसको अरेस्ट किया, उस पर गुना दाखिल किया है और अभी आगे की तपास चालू है। वो कौन से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा है और कौन से लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें से सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हम लोग सीज कर रहे हैं। सर, ये कौन था, कहाँ का रहने वाला है, क्या मकसद है इसका, किस तरीके की बातें कर रहा था वो? जगदीश उइके जो है 35 साल का है, एक लेखक भी है और नागपुर का ही रहने वाला है। वैसे ओरिजिनली चंद्रपुर का रहने वाला है, अभी नागपुर में वो रहता है। और इसका जो अभी तक की तपास में उसका मकसद क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अभी तक की जो उसके कहने पे से मकसद समझ में आ रहा है कि वो केवल एक स्टंट करने के लिए, लेकिन जो इसके पीछे का जो सीरियसनेस है वो ये है कि जब इस प्रकार के ईमेल्स रेगुलर बेसिस पे आते हैं तो पूरी यंत्रणा उसमें बिजी हो जाती है, बहुत सारा उनका इकोनॉमिक लॉस भी होता है। और सही में अगर कुछ इस प्रकार का थ्रेट रहता है तो वो उसका जो नेचर है थोड़ा सा डोसाइल हो जाता है, उनको लगता है कि ये हो सकता है कि दोबारा से होक्स कॉल हो। तो ये इस प्रकार का उसका उद्देश्य है। क्या वजह थी कि वो डीसीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने की बात करता था, कोई कोड बताना चाहता था, कोड है उसके पास जिसको वो बताना चाहता था,
प्राथमिक पूछताछ में क्या बात सामने आई है? देखिए, कोड जो उसने बताया है वो उसने अपने मन से बनाया है। उसने एक मार्केट प्लेस के लिए M, बाजार के लिए B, इस तरीके से रेलवे चेन के लिए R करके उसने कोड उसने बनाया है। बेसिकली अभी तक जो उसका उद्देश्य समझ में आ रहा है वो यंत्रणा को क्या कहते हैं, एक जगह डाइवर्ट करना, और जिस डाइवर्ट होने के बाद क्या कहते हैं कि सारा एनर्जी उसमें लग जाएगा, और कभी अगर सही में थ्रेट होगा तो उस समय पर जो यंत्रणा वीक हो जाएगी और उसको जो अलर्टनेस है वो कम हो जाएगी। इस प्रकार का उसका उद्देश्य दिख रहा है। सर, नागपुर पुलिस कैसे उसको ट्रेस कर रही थी और किस तरह से उसको पकड़ा गया, और प्राथमिक तौर से पुलिस को क्या क्या उसके पास से मिला जिससे प्रूफ हो सके कि वो उसने ही थ्रेट किया था? नागपुर पुलिस उसको पकड़ने के लिए उसका लोकेशन ट्रेस कर रही थी उसके रिश्तेदारों के थ्रू, और जिस प्रकार की जो पुलिस की पद्धत रहती है उसके थ्रू हमने उसको अरेस्ट किया। प्राथमिक तौर पर उसका मोबाइल फोन सीज हुआ है, जिसमें से साफ ये दिख रहा है कि उसके ही जीमेल से, मोबाइल फोन में जो जीमेल है उससे ये मेल भेजा गया है। एक पुराना भी ईमेल अभी तक पाया गया है जो 4 दिन पहले, इससे पहले 4 दिन पहले जो अलग अलग एयरलाइंस को भेजा गया था। ये प्रकार के और कुछ गूगल ड्राइव पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पाए गए हैं जिसमें इस प्रकार के अलग अलग थ्रेट वाले डॉक्यूमेंट्स उसमें दिख रहे हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि उसके पास केवल एक डिवाइस नहीं है, और भी 4-5 डिवाइसेज हैं, तो उनको हम लोग अभी PCR लेके जब्त करेंगे और फिर उसके बाद आगे की तपास करेंगे। सर, उसने किताब भी लिखा है, किस विषय में किताब लिखा है, और क्या मानते हैं कि वो आतंक अपराधी है या फिर वो सिर्फ अपना पब्लिसिटी के लिए सब कर रहा था? किताब उसने जो लिखा है वो आतंकवाद के ऊपर में लिखा है, अमेजोन पे अवेलेबल भी है। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, इसमें अगर पब्लिसिटी के लिए करना एक बात है, लेकिन इस प्रकार का क्राइम करने की वजह से जो पूरी यंत्रणा एक जगह पर लग जाती है और उसको आने वाली जो अलर्टनेस है वो उसकी खत्म हो जाती है, तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी हो सकता है कि एक जगह पे यंत्रणा को डाइवर्ट करना, और फिर जब सही में कुछ इस प्रकार का हो तब यंत्रणा अलर्ट ना रहे, इस प्रकार का भी हम उस पर तपास कर रहे हैं। जांच में कुछ ऐसा कुछ पता चला है, सामने आया है क्या पुलिस को कि जिस तरीके से वो ऐसे थ्रेटन मेल्स करता था तो कहीं आतंकियों संगठन से उसके संबंध या किसी एजेंट के रूप में वो काम करता है, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो उनके संबंध किसी एजेंट के बाद, क्योंकि अभी कल रात में ही अरेस्ट किया है, तो अभी हम उसके डिवाइसेस वगैरह भी जब्त कर रहे हैं। अभी PCR के लिए पहले लेके जाएंगे डिवाइसेस, फिर जब्त करेंगे, उसके बाद फिर हमको आतंकवादी संगठनों के साथ क्या संबंध है, ये जो जानकारी दे रहा है कि इस जगह पर बॉम्ब लगाए गए हैं, ये जानकारी उसको कहाँ से मिली, ये सब चीजों की तपास अभी बाकी है। सर, देवेंद्र फडणवीस के घर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो क्या मानते हैं उनके ने जो थ्रेट दिया था उसके वजह से सुरक्षा बढ़ाई गई है? वो नहीं, उनके फडणवीस जी के घर पे और सभी जगह सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके इनपुट पे बढ़ाई गई है। अब वो केवल मुझे नहीं पता, लेकिन केवल इसकी वजह से नहीं है और बहुत सारी चीजों की वजह से बढ़ाई गई है। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।